Good morning, students. So already we have completed 2 chapters. 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए. एक है वेदर क्लाइमेट, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स. अब नेक्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे वो है द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए पार्ट बाय पार्ट हम डिवाइड किए. ये पार्ट 1 पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. अर्थ को सराउंड करते हैं जो लेयर ऑफ एयर, that is called atmosphere. It is composed of many gases and is held in place by the force of Earth's gravity. So it is held in the place by the force of Earth's gravity. अर्थ की ग्रेविटी है, इसीलिए एटमॉस्फेयर है. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ है? The atmosphere is made up of 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% carbon dioxide and the other gases. So other gases में inert gas है, जैसे कि argon and helium है. Nitrogen it is used by organism to produce proteins. Oxygen ये essential है for life. Animal use oxygen to convert their food into energy. तो एनिमल्स ऑक्सीजन यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए अपना फूड को एनर्जी में. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. नाउ ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर. तो सिर्फ कम परसेंटेज, लिटिल बिट परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर एंड मैक्सिमम वाटर वेपर इज फाउंड इन द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है over the equator, that is there only we face the water vapor. नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल्स या फिर डस्ट. एयर होल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ पोलन डस्ट, सॉल्ट, सूट एंड स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज इन इट्स लोअर लेयर्स. तो एयर में कहाँ से आते हैं ये सारे डस्ट? ये डस्ट पार्टिकल्स आते हैं पोलन डस्ट से. सूट मीन्स द एशेस और द स्मोक्स that comes out from the vehicles. Smoke from the automobiles and the factories and its lower layers. Clouds and fogs, they form the water vapor. Clouds or fogs भी water vapor form करते हैं, condenses on these floating impurities. Now comes role of atmosphere. So what are the role of atmosphere? The oxygen and carbon dioxide. It's present in the atmosphere. They are essential to sustain life. Life sustain के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. Atmosphere filters out ultraviolet rays and gamma rays that are harmful to life. Ultraviolet rays or gamma rays that we receive from the sun's rays. Sun rays में ultraviolet rays है, तो atmosphere है, इसीलिए ultraviolet rays हम लोगों के आँख तक पहुँच नहीं पाते हैं. The atmosphere plays a vital role. Atmosphere बहुत vital role play करते हैं किसमें? In the water cycle by storing water in the form of water vapor. Water को water vapor के form में ही store करते हैं. अब water cycle है क्या? वो बहुत ही simple चीज़ है, बहुत दिन तक तुम लोग पढ़े हो water cycle, जिसमें तीनों चीज़ involved है. Evaporation, condensation and precipitation. When water gets heated up, water evaporate हो जाते हैं. Evaporate होके water वेपर में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं, इसीलिए ऊपर में उठ जाते हैं. तो ऊपर उठते उठते वो जब ठंडा होते हैं तो कंडेंस करते हैं एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स. वंस इट फ्लोट एज क्लाउड्स, जब वो हेवी हो जाते हैं क्लाउड्स, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होते हैं, जो रेनफॉल भी हो सकते हैं या स्नोफॉल या हेलस्टोन्स, किसी भी फॉर्म में ये गिर सकते हैं. यही है वाटर साइकिल. Now the atmosphere acts as the tough out skin of the earth by stopping most of the meteoroids from reaching the surface of the earth. Earth में atmosphere है, इसीलिए meteoroids atmosphere में reach नहीं कर पाते हैं. The atmosphere it helps to keep the range of temperature on the earth at the optimum level needed for life by absorbing heat energy from the sun and preventing it from escaping back into space. What does this mean? The atmosphere it helps to keep the range of temperature on the earth at optimum level. Optimum level means not too hot, not too cold, the exact level which it wants. ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं. Needed for life by absorbing heat. जितना चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर है लिविंग बींग्स के लिए.
from the sun, एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। तो पूरे चीज़ एस्केप आउट नहीं होते हैं स्पेस में, थोड़ा बहुत एस्केप आउट होते हैं, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में एक डायग्राम है जो हम दे देंगे तुम लोगों को, उसको देखकर तुम लोग ड्रॉ कर लेना या फिर ड्राइंग प्रैक्टिस कर लेना। तो लेयर्स ऑफ द अर्थ में फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एग्जॉस्फियर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का ये 5 लेयर्स है। नाउ वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, दिस 2 ओनली। लेटर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, दिस इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो ये अर्थ के सबसे क्लोज लेयर है। इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वेरी करते हैं 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। दिस इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें कंटेन करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड 99% ऑफ द वाटर वेपर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स दे आर फाउंड इन दिस लेयर। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल इसी लेयर में मिलते हैं। क्लाउड्स आर also found in this layer as these are important factors that control weather। ये weather को control करते हैं। The troposphere is called the weather making layer। troposphere को weather making layer बोलते हैं। Air in the troposphere it thins with altitude, so there are fewer molecules of oxygen। तो जैसे ही troposphere का air in the troposphere thins with altitude, जितना height बढ़ेंगे उतना एयर भी थीन होते जाएंगे, एयर का डेंसिटी कम होते जाएंगे। फ्यूअर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस इन द अपर ट्रोपोस्फियर। दिस इज व्हाई माउंटेनियर्स ऑफन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स व्हाइल क्लाइंबिंग टॉल पीक्स। इसीलिए जब टॉल पीक्स में माउंटेनियर्स क्लाइंब करते तो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है हाई ऑल्टीट्यूड में या फिर ज़्यादा हिली रीजियंस में, जहाँ पे माउंटेन्स बहुत ही हाई माउंटेन्स है, वो सारे रीजियंस में। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड। टेम्परेचर भी ऑल्टीट्यूड वाइज डिक्रीज होते हैं। इट डज सो एट द रेट ऑफ 6.5 फॉर एवरी 1000 मीटर। 1000 मीटर करके जितना ऊपर चलोगे उतना 6.5 डिग्री सेल्सियस करके टेम्परेचर कम होते जाएंगे। नाउ फॉर दी दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट। तो इसको लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। एंड द ट्रोपोपॉज इट्स द नैरो जोन दैट सेपरेट्स द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द लेयर अबव इट, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो नैरो जोन है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रोपोपॉज टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। ट्रोपोपॉज से ये 50 किलोमीटर अबव में है। Here the temperature increases with height as a result of the absorption of ultraviolet light by the ozone present here. So here the absorption of the ultraviolet light by the ozone that are present here. And next it comes the change in weather conditions. Weather conditions का change भी होता है which is rare in this layer। बहुत कम वेदर कंडीशन यहाँ पे चेंज होते हैं, इसीलिए जेट प्लेन्स बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं वहाँ से। मेनली फ्लाई थ्रू दिस ट्रोपोपॉज एंड द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि वहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है और कोई भी चीज़ नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर सके इस जेट प्लेन्स को। द स्ट्रेटोपॉज फॉर्म्स द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर। स्ट्रेटोपॉज फॉर्म करते हैं अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर। नाउ नेक्स्ट इज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में ही है। The ozone layer is a layer within the stratosphere with a high concentration of a gas called ozone। ओजोन गैस हम लोगों को मालूम है O3 जिसको बोलते हैं। तो ओजोन लेयर में वो ओजोन गैस मिलते हैं। ओजोन इज अ वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ एज इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन एब्जॉर्ब्स करते हैं एक्सेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इट कैन डैमेज आवर आईज। ज़्यादा एक्सपोज कर ले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में दैट विल डैमेज आवर आईज एंड स्किन एंड कैन इवन लीड टू कैंसर। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, बहुत सारे जगह पे ओजोन लेयर डिप्लेट होना शुरू हो गए। इट रिजल्ट्स ऑफ द इंक्रीज यूज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक टाइप का गैस है
जिसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, CFCs, एंड आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय एयर कंडीशंस। किससे रिलीज होता है? एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल्स एंड एरोप्लेन से। यूज ऑफ द CFCs हैज नाउ बीन कर्ब्ड। कर्ब्ड मीन्स बहुत कम होते हैं अभी यूजेस, बट फ्री क्लोरीन एटम्स कंटिन्यू टू लिंगर इन द एटमॉस्फेयर। फ्री क्लोरीन एटम्स तो मिलते ही एटमॉस्फेयर में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतना तक। सो रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।